Hello all. I welcome my dear students and viewers to my ePolitical Science YouTube platform. As you have been consistently requesting me to cover the topics which are pending in this particular course, so I keep on reading your comments and your requests, and so I respond to it accordingly. So today I have brought up the third part, the third unit methodology, that is on discourse analysis, और इसे हम हिंदी में कहते हैं प्रवचन विश्लेषण। हालांकि हिंदी का जो सटीक इसका जो शब्द है वो एक बार और आप देख सकते हो, क्योंकि इसके अलावा भी हम कोई और शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने प्रवचन विश्लेषण इस्तेमाल किया है, और ये हमारा जो डिस्कोर्स एनालिसिस का ये भाग 1 है, पार्ट 1 है। आर्काइवल मेथड्स के जो पार्ट 2 है उसके लिए भी स्टूडेंट्स कह रहे हैं, तो मैं वो जल्दी ही कंप्लीट कर दूँगी। तो हम पहले इसको डिस्कस करते हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथडोलॉजी में से एक पार्ट है इसका। So let us first begin with the understanding, how we understand discourse analysis as. So it is a qualitative research method which is used to study how language is used in real life situations, going beyond simple word analysis to examine how language conveys meaning, shapes power dynamics, and reflects social contexts. It's a versatile tool applicable across various disciplines, helping researchers understand communication patterns and their social implications. अब हम जब विवेचनात्मक विश्लेषण की बात करते हैं तो ये एक गुणात्मक शोध पद्धति है जिसमें भाषा, किस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं, लेखन, मीडिया और सामाजिक संवादों का इसमें विश्लेषण किया जाता है, ताकि उनके अंतर्निहित अर्थ, शक्ति संबंध और सामाजिक संदर्भों को समझा जा सके। यह विधि भाषा विज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और मीडिया अध्ययन में प्रमुखता से प्रयोग की जाती है। डिस्कोर्स एनालिसिस के स्टूडेंट्स बहुत सारे टाइप्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जैसे डली डिस्कोर्स पढ़ते हैं, जेंडर डिस्कोर्स पढ़ते हैं, ठीक है, फेमिनिस्ट डिस्कोर्स पढ़ते हैं। तो डिस्कोर्सेस के बहुत सारे टाइप्स हैं, और इस क्रिटिकल डिस्कोर्स पढ़ते हैं। तो उस टाइप्स को भी मैं, जो हमारा पार्ट 2 होगा उसमें मैं डिस्कस करूँगी, क्योंकि ये सारे जो है विवेचनात्मक अध्ययन है जिसमें हम चीज़ों को समझने का गहन अध्ययन के थ्रू, और एक स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन होती है। एकदम से अगर हम बैठें और समझने की कोशिश करें तो हमें तुरंत समझ में नहीं आएगा कि डिस्कोर्स में एनालिसिस क्या होता है और रिसर्च मेथड में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई थिंक हमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, थोड़ा इसको समझने के लिए हमें जो है एग्जाम्पल्स के अध्ययन के मात्र से हम इसे समझने का प्रयास करें तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। And then key aspects. Now discourse analysis, what exactly it focuses on, so it examines written or spoken language in its social context, including the structure of language, its meaning and its impact. Purpose: to understand how language functions in different social contexts, how meaning is created, and how power dynamics are expressed through language. Language plays a very important role here. And then the socio-cultural context. Then the methodology which is used in this particular analysis is, it could be how you are using language, looking at the how and then why behind communication choices rather than just the what. So here we are going to understand the deeply embedded meaning of any understanding, any perspective, rather than just looking at the what part or something which is very factual. So we have to look into the conceptual idea, and that is why it is known as the qualitative analysis. Now, as far as the approaches are concerned, discourse analysis can be approached from various perspectives, including critical discourse analysis, as I told you, examining power relations, structural relations, and conversation analysis, including the structure of conversations. Now, let us go through some examples. For example, let's say analyzing political speeches, examining media representations, or studying doctor patient's interactions, all are potential applications of discourse analysis. Now, steps. Now, how do we perform it? Research often involves defining a clear research question, selecting relevant data, conducting a thorough analysis of the language, and interpreting findings within the specific social context.
As far as relationship to other methods are concerned, can we mix up this method with some other method and use it accordingly? So yes, we can do it. So discourse analysis can be used in conjunction with other qualitative methods such as interview method, ethnographies, to provide a more comprehensive understanding of the research topic. Discourse analysis, as we come to know, it is a powerful tool understanding the intricate relationship between language, power, and social context, enabling researchers to explore a wide range of social phenomena through the lens of language use. अगर हम इसे हिंदी में समझने की कोशिश करें तो डिस्कोर्स एनालिसिस के मुख्य जो पहलू हैं वह है भाषा का उपयोग। यह विधि शब्दों, वाक्यांशों और व्याकरणिक संरचनाओं के उपयोग का विश्लेषण करती है। बातचीत की संरचना अगर हम देखें तो यह बातचीत की संरचना का विश्लेषण करती है, जैसे कि बोलने वाले कैसे बारी बारी से बोलते हैं कैसे विषय विकसित होते हैं और कैसे असहमति भी व्यक्त की जाती है। अब सामाजिक संदर्भ की अगर हम बात करें तो यह भाषा के उपयोग के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भ का विश्लेषण करती है। शक्ति संबंध की अगर हम बात करें तो यह भाषा के उपयोग में शक्ति संबंधों और असमानताओं, जो सामाजिक असमानताएं हैं, उनको उजागर करने का प्रयास करती है। विचारधाराओं के संदर्भ में भी बहुत सारे ऐसे पर्सपेक्टिव हैं, अंतर्निहित विचारधाराएं हैं और विश्वास हैं जो हम जिसके अध्ययन के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। अब इसके बहुत सारे चरण हैं, टाइप्स स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम इसको परफॉर्म करते हैं, जैसा कि मैंने इंग्लिश में बताया। तो अनुसंधान प्रश्न का निर्धारण, शोधकर्ता यह निर्धारित करता है कि वह भाषा के उपयोग के बारे में क्या जानना चाहता है और उसके अनुसंधान प्रश्न क्या हैं। पहले तो हमें पता होने चाहिए कि हमारे रिसर्च का जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्योंकि तभी हम इस जो डिस्कोर्स है एनालिसिस उसका हम यूज़ कर सकते हैं अपने रिसर्च क्वेश्चन में, अपने पूरे मेथडोलॉजी में। अब डेटा का हम चयन करते हैं। शोधकर्ता प्रासंगिक जो डेटा है उसका चयन करता है, जैसे कि साक्षात्कार हो गया, वार्तालाप हो गई, मीडिया हो गया, पाठ या नीति दस्तावेज। अब डेटा जब हम चयन कर लेते हैं तो डेटा का विश्लेषण करते हैं। शोधकर्ता चयनित डेटा का विश्लेषण करता है, भाषा के उपयोग में पैटर्न, विषयों और संरचनाओं की पहचान करता है। इस विश्लेषण में भाषा में उपयोग होने वाले शब्द, वाक्यांश और व्याकरणिक संरचनाओं को देखा जाता है। बातचीत में उपयोग होने वाले बातचीत की संरचनाओं को देखा जाता है, जैसे कि बोलने वाले कैसे बारी बारी से बोलते हैं। अब हम अगर निष्कर्षों की व्याख्या इसमें हम करते हैं तो शोधकर्ता अपने निष्कर्षों की व्याख्या करता है, यह बताते हुए कि भाषा का उपयोग सामाजिक क्रियाओं को, शक्ति संबंधों और विचारधाराओं को कैसे आकार देता है। तो भाषा का उपयोग इस वेरिएबल को समझने के लिए शक्ति संबंधों को, संरचनाओं को और विचारधाराओं को कैसे आकार देता है। निष्कर्षों का लेखन और प्रसार, शोधकर्ता अपने निष्कर्ष जो भी वो कंक्लूड करता है, जो उसकी फाइंडिंग्स होती है, उसको एक रिपोर्ट या लेख में लिखता है और उन्हें विद्वानों या अन्य इच्छुक पार्टियों के साथ साझा करता है, या और भी लोग जो इस तरह के इंटरेस्ट रखते हैं उनके साथ वो सिमिलर तरीके का जो मेथड्स है उसको शेयर करता है। तो हमें स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान रखना है कि डिस्कोर्स एनालिसिस जो हमारे थर्ड यूनिट है रिसर्च मेथड का, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और क्योंकि मैंने बताया कि उसमें सिर्फ एम्पिरिकल मेथड जो है वो है फैक्चुअल मेथड और बाकी सारे जो है क्वालिटेटिव मेथड है। तो वही है कि जो क्वांटिटेटिव मेथड है, बाकी सारे क्वालिटेटिव और नॉर्मेटिव मेथड्स हैं, चाहे हम एथनोग्राफी की बात करें, डिस्कोर्स एनालिसिस की, आर्काइवल की। आर्काइवल का सेकंड पार्ट मैं रिसेंटली लेके आऊँगी एज सून एज पॉसिबल। एंड द सेम जो हमारा डिस्कोर्स एनालिसिस है उसमें क्या क्या उसके प्रकार हैं, टाइप्स क्या है, क्या इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या हम किस तरह के जो चैलेंजेस है एनालिसिस करने में हमें आता है और क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव है डिस्कोर्स एनालिसिस का, ये सारी चीज़ों को हम डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो connect with me and keep watching this and do subscribe it and support it. Thank you. God bless you.